हेलो फ्रेंड्स, आई एम इंग्लिश टीचर अनुप्रिया। आज के सेशन में हम एक इम्पोर्टेंट ग्रामर लेसन लर्न करेंगे व्हिच इज द यूज ऑफ डू, डज एंड डिड। द सीन वेरी कंफ्यूजिंग बट आई विल मेक इट सिंपल फॉर यू। सो व्हेन वी से डू, डज एंड डिड, ये इंग्लिश ग्रामर के किस सेगमेंट को शो करता है? ये शो करता है वर्ब के सेगमेंट को। नाउ व्हिच काइंड ऑफ वर्ब इट इज? It is known as an auxiliary verb in English grammar और हम इसे helping verb भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? Let's go towards the examples and explanations why. So, do जो है वो एक टाइम फ्रेम को शो करता है, does भी टाइम फ्रेम को शो करता है, जो कि हम इंग्लिश ग्रामर में बोलते हैं जिसे टेंसेस, कि ये किस टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब है। So do and does इंग्लिश ग्रामर के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस को शो करता है। इट मीन्स कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन इन दोनों ही ऑक्सिलरी वर्ब्स के यूज डिफरेंट तरीके से किए जाते हैं। टाइम फ्रेम एक ही शो होता है, लेकिन इनके साथ यूज किए जाने वाले मेन वर्ब्स एंड सब्जेक्ट इन दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। वो क्या है वो हम देखेंगे। Here I have written few subjects जिनके साथ हम do का यूज करते हैं। I, you, we and they। जब एक सेंटेंस में, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, do लिखा होता है, तो do का यूज हम किन सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं? वो है I, you, we and they। इसका यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, लेकिन I and you इसमें एक्सेप्शंस हैं। ये सिंगुलर है, लेकिन फिर भी हम इनके साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं? Do यूज करते हैं। Looking at the examples, what I have written, जब हम कुछ पूछते हैं, when we mark any question, when we ask something in simple present form, so we put do at the head of the sentence. Normal statement जब होता है, कोई assertive sentence होता है, तो simple present में do नहीं आता है। लेकिन किसी negative sentence में या फिर किसी interrogative sentence में हम do का यूज करते हैं। If I say I study a lot. So I study a lot, ये simple present tense का एक simple सा sentence है जिसमें हमने कौन सा subject यूज किया है? I यूज किया है। I क्या है? आपका auxiliary verb है and study आपका main verb है। So I study a lot is a normal statement or an assertive sentence, लेकिन जब हम इसको negative में convert करते हैं या फिर interrogative में convert करते हैं, which means कि हम कोई question पूछ रहे हैं, then we say do I study a lot? क्या मैं बहुत पढ़ाई करती हूँ? So here what we are using? We are using do. So it is very much clear कि simple present tense के अंदर normal statement में या फिर assertive sentence में हम do का use नहीं करते। Only on special cases we use that, I'll explain you further. But जब हम कुछ पूछ रहे हैं या फिर कोई negative statement दे रहे हैं, तब हम do का use करते हैं। So here I have given you one example that when we ask something we use do I study a lot or do you like her? Again here we are asking a question. Do they go for a walk? It is also a form of asking a question, which is an interrogative sentence. So here what you are saying कि do को हमने head of the sentence रखा है, उसके बाद आपका subject आया है, और हमेशा हम do के साथ first form of the verb use करते हैं। कौन सा verb? यहाँ पे हमने सीखा कि do तो auxiliary verb है, so कौन सा verb बचता है? वो है main verb, which is known as action verb. So always we use first form of main verb along with do in any sentence, whether it is assertive, negative or interrogative. Now let's come at don't. Don't is completely the negative form of do. Here we were asking a question और यहाँ पर हम negative statement दे रहे हैं। They don't like such jokes. उसे ऐसे jokes नहीं पसंद आते। It means that in general, in regular manner, they don't like such jokes. They is what? Plural subject, and plural subject के साथ हमने verb को use किया है, first form of the verb which is not having any s or es along with it. I don't think the same way. मैं वैसा नहीं सोचता जैसा वो सोचते हैं या फिर वो सोचते हैं। So I, what we have written here, do not means
don't. I don't think the same way. So in this way we have learned that we are using do. हम do का use कब कर रहे हैं? हम use कर रहे हैं plural subject के साथ simple present tense में क्वेश्चन को फॉर्म करने के लिए या फिर नेगेटिव स्टेटमेंट देने के लिए, और इसके साथ मेन वर्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा. कमिंग एट द डज. डज का यूज किन सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं? डज का यूज करते हैं ही, शी, इट या फिर नेम ऑफ अ पर्सन. यस, यहाँ पर यू हैव सीन कि हम किसी नेम के साथ नहीं यूज कर रहे, बट डज का यूज हम किसी भी पर्सन के नाम के साथ या फिर ही, शी या इट के साथ यूज करते हैं. इन शॉर्ट इसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं एक सेंटेंस में जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को बिलोंग करता है. लुक एट द एग्जांपल्स. वही रूल अप्लाई होता है कि जब हम कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं एजर्टिव फॉर्म में, व्हिच इज अ नॉर्मल, जिसमें ना तो हम कुछ पूछ रहे हैं ना हम एक नेगेटिव बात कर रहे हैं. So in that form, what happens? We never use does. Suppose if I am saying she likes a lot, she likes to dance, she likes to sing. तो एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, एक एजर्टिव सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जिसमें सब्जेक्ट सी है, शी है, आई एम सॉरी, एंड वो प्लूरल है. So along with she, what we have said, she likes to dance. तो she के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रहा है, लेकिन उसमें हम s या फिर es लगाते हैं जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जब वो एजर्टिव है, जब उसमें नेगेटिव या क्वेश्चन फॉर्म नहीं है. बट जैसे ही इंट्रोगेटिव फॉर्म आता है या फिर नेगेटिव स्टेटमेंट आता है, तो हम क्या यूज करते हैं? डज यूज करते हैं. और डज के साथ कभी भी मेन वर्ब में s या es नहीं आता है. प्लीज बाय हार्ट दिस स्टेटमेंट दैट वी नेवर यूज s or es along with main verb when we are using does in a sentence. So look at the example. Does she like to dance? I have not mentioned here does she likes to dance. She likes to dance is a normal statement. But when you ask a question, does she like to dance? Does he read it daily? First form of the verb without s or es. We are putting does at the head of the sentence. Look at the negative form, which is doesn't. Now, same rule apply होता है. यहाँ पर भी हम कभी भी does के साथ action verb में s या yes नहीं ऐड करेंगे. Riya doesn't like to swim. It doesn't work. We are not saying here it doesn't work या फिर Riya doesn't likes to swim. लेकिन ये normal sentence होता तो it works. ये काम करता है. But when we are making it in a negative, it doesn't work. Now, look at the next use of did. जैसे हमने देखा यहाँ पे do and does किसे बिलोंग करता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस को बिलोंग करता है. और ये दो सेगमेंट्स थे, एक सिंगुलर के साथ यूज किया जा रहा है और एक प्लूरल के साथ यूज किया जा रहा है. बट did पास्ट को बिलोंग करता है, सिंपल पास्ट टेंस को बिलोंग करता है, और did का यूज हम I, you, we, they, he, she, it and name of any person के साथ यूज करते हैं. मीन्स यहाँ चाहे सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, हम दोनों के साथ ही did का यूज करते हैं. So look at the examples. Before I go asking a question and making a negative statement, I'll explain you कि जब ये assertive sentence होता है, it is like I went there. यहाँ पर हम past form यूज कर रहे हैं, simple past tense. सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो रहा है एक्शन का. I went there. मैंने ये नहीं कहा I go there. लेकिन जब हम सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें हम क्या पुट करते हैं? डिड को यूज करते हैं. और डिड के साथ हम कभी भी पास्ट फॉर्म, इट मींस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं यूज करेंगे. वी विल ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन वी यूज डिड इन अ सेंटेंस. सो let's look at the example when we ask a question, did they live in Mumbai? So here what we have said, did they live, not lived. Did you visit a museum? We are not saying here did you visited a museum. Don't get confused कि यहाँ पर तो हमारा मेन वो फर्स्ट फॉर्म है, फिर ये सिंपल पास्ट को कैसे बिलोंग करता है? ये बिल्कुल करता है क्योंकि हमने यहाँ पर did mention किया है. So did you visit a museum? Now coming into didn't, I didn't want to go. Same rule applies. We never use second form of the verb along with did, even if it is in the negative form.
he didn't study well. Same rule applies and we can use this thing along with all these subjects जो कि यहाँ पर mention है. Now, ये हमने देखा कि do, does and did का हम use as auxiliary verb एक sentence में कैसे करें. Means जहाँ पर हमें इन verbs के through टाइम फ्रेम का पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट को बिलोंग कर रहा है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज हो रहा है, ये प्लूरल के साथ यूज हो रहा है एंड ये पास्ट के साथ यूज हो रहा है. बट इन तीनों ही ऑक्सिलरी वर्ब्स, आई विल नॉट से ऑक्सिलरी वर्ब्स, इन तीनों ही वर्ब्स का यूज एज अ टू डू वर्ब भी होता है. मींस सम टाइम ये मेन वर्ब में कन्वर्ट हो जाते हैं. कैसे? लुक एट दिस, टू डू वर्ब्स. आई एम नॉट हियर रिटन हियर मेन वर्ब्स क्योंकि ये कंप्लीट रिफाइंड वे नहीं है लिखने का. So it is known as to do verbs in English grammar. Means यहाँ पर ये auxiliary verb का रोल नहीं प्ले करते. Means यहाँ पर ये नहीं बता रहा है कि ये present का फॉर्म है या फिर ये past का फॉर्म है. What do you do? It's a kind of question. कई बार आपसे पूछते हैं लोग, what do you do as a profession? So यहाँ पर what when it is do, ये definitely auxiliary verb है. लेकिन ये last वाला do जो आप देख रहे हो, ये क्या है? यहाँ पर ये टू डू वर्ब है. मीन्स कि एक एक्शन वर्ब दिखाई दे रहा है कि आप क्या करते हो. सो दैट करना व्हिच वी आर सेइंग इन योर नेटिव लैंग्वेज, दैट इज नोन एज दिस लास्ट डू. व्हाट डू यू डू? I do exercises. No, it is not the answer of this question that I completely do exercises and nothing else. It's only an example of this segment जो कि to do verbs का है. If I'm saying I do exercises, इट मीन्स कि यहाँ पर डू क्या शो हो रहा है? डू एज एन एक्शन वर्ब शो हो रहा है कि मैं एक्सरसाइजेस करता हूँ. ही डज इट डेली. वो ये काम रोज करता है. सो दैट डज इज शोइंग अगेन एन एक्शन और यू कैन से मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस. शी डज लाइक यू. ऑलराइट, जब हम कह रहे हैं शी डज लाइक यू तो यहाँ पर डज इज व्हाट शोइंग? इट इज शोइंग शी लाइक्स यू. is a normal assertive sentence. वो तुम्हें पसंद करती है. But when I say she does like you means कि इस बात पे emphasis किया जा रहा है कि वो तुम्हें पसंद करती ही है. So she does like you. Does is a kind of verb here, action verb here, which is showing an emphasis or stress on liking you. We did some charity. हमने कुछ चैरिटी की थी. सो अगेन दिस इज व्हाट हियर, दिस इज नोन एज एक्शन वर्ब. I did everything for him. मैंने उसके लिए सब कुछ किया. So here in this segment what we have seen कि ये तीनों ही verbs को हम auxiliary के अलावा as a to do verbs भी देखते हैं जो कि as an action verb convert हो जाता है. So that's all for this session. I hope you must have learned a lot and next time you're not going to make any mistake regarding all these grammar lessons. Bye for now.